مفتی محمد قاسم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب شکریہ وقت دینے کا. سیلاب کے صورتحال پر گفتگو جاری و ساری ہے کہ سندھ میں جو سیلاب آیا کیا معاملات ہوئے, کتنی تباہی ہوئی اور کتنی چیزوں کو درست کیا گیا اور کتنی چیزیں ابھی بھی درست نہیں ہیں, کتنا نقصان ہوا اور اس نقصان کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں, کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. آج ہم اسمبلی میں 2-3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان پر جو پہلا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اسمبلی کو 3 مہینے کے لیے تالا لگا دیا گیا. یہ 3 مہینے تک تالا لگا کر رکھنا یہ سیلاب زدگان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پر ان کے لیے بات بھی نہ کر سکیں, ہم ان کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آپ لوگوں کو مشورہ بھی نہ دیکھ سکیں, آپ اس کی طرف آ بھی نہ سکیں؟ اس لیے آن نہیں تھی کیونکہ سارے ممبران اپنے اپنے ایریا میں تھے, تو یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اگر ہم اس کو چلاتے بھی. جی اسی طرح میں آ رہا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ یہی جواب آئے گا کہ سارے ممبران اپنے اپنے علاقوں میں تھے. نہیں, علاقوں میں بھی نظر نہیں آئے اسپیکر صاحب, علاقوں میں بھی معذرت کے ساتھ کوئی نظر نہیں آیا. حکومت اگر نظر آتے, درستگی ہوتی اور یہاں پر لوگ آتے اور کرتے تو آج ہم اتنی پریشانی میں کہاں ہوتے. 3 مہینے اگر لگاتار یہ سب اپنے حکومتی نمائندگان وہاں پر تھے تو ابھی تک خرابیاں کیوں ہیں, ابھی تک پریشانی کیوں ہے, ابھی تک روڈ پر لوگ کیوں موجود ہے, ابھی تک ریلیاں لگا کر ان کا اپنے جھونپڑیوں میں کیوں ہیں, ابھی تک وہ چاول ابال کے کیوں کھا رہے ہیں, ابھی تک بچی ہوئی گندم وہ اپنے بچوں کو ابال کے کیوں دے رہے ہیں, ابھی تک پانی ان کے پاس کیوں نہیں ہے, ابھی تک کھانا ان کے پاس کیوں نہیں ہے. 3 مہینے تک کیا کیا ہے؟ آتے تو بتا دے. سی ایم صاحب آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں بہت بڑی تقریر سنا دی اور ہمیں اسکرین پر بہت کچھ دکھایا. ایسا لگا کہ اب سندھ میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. کہیں سے دکھایا گیا کہ اتنی بڑی پریشانی ہے, تو اتنی بڑی پریشانی صرف اسمبلی میں 3 مہینے تک ڈسکس ہی نہیں ہوگا تو وہ حل کیسے ہوگا, اس کی پریشانی کو ہم ٹھیک کیسے کریں گے؟ سی ایم صاحب نے آ کے ہمیں سارا کچھ بتایا کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے, اتنی پریشانی ہے, اتنی پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. بھائی آپ نے 3 مہینے آپ نے وہاں لگائے. سی ایم صاحب نے کہا کہ میں ہر ضلع میں 2 مرتبہ گیا ہوں. 3 مہینے میں 90 دن ہوتے ہیں اور 5-6 مہینے سے لوگ وہاں متاثر ہیں, تو گویا کہ آپ 15-16 دن گئے ہیں اور اسمبلی آپ نے 3 مہینے بند کر دیا. خود وہاں پر 15-16 دن جانے کے لیے پورا اسمبلی بند کر دیا تاکہ ہم ان کے حقوق کے لیے ہم نشاندہی نہ کرا سکے, ہم بتا نہ سکے کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہیں. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ آپ آئے 3 مہینے کے بعد تو آپ یہ بتاتے کہ لاڑکانہ میں 3 لاکھ افراد متاثر ہوئے. 3 لاکھ میں سے آپ نے کتنوں کو کتنے خیمے دیے, آپ نے کتنا کھانا دیا, آپ نے ان کو صاف پانی دیا, آپ نے ان کو خوراک دیا, کتنوں کو دیا؟ بتاتے کہ لاڑکانہ میں 3 لاکھ, مثال کے طور پر 3 لاکھ افراد متاثر تھے. 3 لاکھ میں سے آپ نے کتنوں کو دیا؟ پتا چلا جی آپ نے 10,000 کو دیا, 20,000 کو دیا, آپ نے 30,000 متاثرین کے ساتھ مدد کی. تو بھائی باقی جو 2,70,000 باقی جو بچتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا تعاون کیا؟ آپ نے میڑ میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, آپ کے جوئی میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, 7 میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, قاضی احمد میں کتنے متاثر ہوئے, نواب شاہ میں کتنے متاثر ہوئے, بدین میں, لاڑکانہ میں اور ٹھٹا میں اور سجاول میں اور دوسرے علاقوں میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, اور آپ نے کتنوں کے ساتھ تعاون کیا؟ 3 مہینے کے بعد آپ نے آ کر یہ بتایا کہ ہم نے تو کوئی ایسا فگر ہمیں نہیں ملا کہ آپ نے اتنے لاکھ متاثرین میں سے اتنے کے ساتھ تعاون کیا. ہاں یہ بات ہمیں ملی کہ اپوزیشن نے کچھ بھی نہیں کیا, اپوزیشن نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اپوزیشن جماعتیں تو نظر ہی نہیں آئے. اور عوام سے پوچھے, عوام کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو حکومت نظر نہیں آئی. بھائی آپ کہیں گے نہیں ہمیں ہم تو نظر آتے ہیں, نے کہا نہیں آپ تو کورونا ہو.
जैसे कोरोना का फंड नजर नहीं आया, कोरोना का राशन नजर नहीं आया, ऐसा सैलाब का फंड भी नजर नहीं आया, और सैलाब का जो राशन भी नजर नहीं आया, फंड भी नजर नहीं आया, ताउन भी नजर नहीं आया। पता नहीं वो आप लोगों को नजर आता है। और हमने ये देखा कि ये सारा कुछ अगर आपने किया है, ईमानदारी पर किया है, आपने कोई रिलीफ फंड कायम किया है, आपने कोई रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है, आपने अगर रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है तो मेरे ख्याल में जवाब में आएगा, हाँ जी एक कमेटी बनाई है हमने। तो कमेटी में किसको रखा है आपने? आपने जेडीए का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने एमक्यूएम का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने पीटीआई का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा रखा है? क्यों नहीं रखा? मैं सिंध के अफराद से ये उनको पैगाम देना चाह रहा हूं, जो आपके लिए फंड रिलीफ की कमेटी बनाई गई है, खतरे की गारंटी है। मसला क्या है? हमें क्यों नहीं रखा गया इन कमेटियों में? मसला ये है कि हम अगर आएंगे तो हमें बताना पड़ेगा, हमें आप दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या मामला है। मगर आपने किसी चीज को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, छुपाना है और खाना है। तो अभी खाने वाले मामलात में आप हमें क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे आप। तो हमारा मुतालबा यह है कि आपने जो रिलीफ फंड कमेटी कायम की है उसमें आपने अपोजिशन जमातों में से किस किस को रखा है? आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किसको रखा है, या दूसरी जमातों में से किसको रखा है? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों यानी सिंध वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली होगी तो फिर यही मामला होगा, यही परेशानी होगी। अभी तक आप बताएं, किसी ने आके बताया कि हम पीपल्स पार्टी को 15 साल हुकूमत में हो गए, 15 साल के अंदर जो सैलाब का पानी बलोचिस्तान से आता है, जो दूसरे सैलाब के पानी सिंध में दाखिल होते हैं, उनके लिए कितने डैम बनाए, कितने डैम बनाए 15 साल में बताया जाए। सिंधियों के जान की तहफ्फुज के लिए, उनके जमीनों की तहफ्फुज के लिए, सैलाबी पानी को रोकने के लिए कितने डैम बनाए गए? कोई नहीं बनाया गया, कक नहीं बनाया गया, ना ही बनाया जाएगा। सिवाय यहां पर हमें बस भाषण दिया जाएगा, हम ये करेंगे, हम 20 लाख घर बनाएंगे। मैंने कहा क्या हो गया भाई, 50 लाख घर तो पहले सुन चुके, 1 करोड़ घर पहले सुन चुके, अब आप 20 लाख घर पे आ गए हैं। आप 20 लाख घर बनाने की सलाहियत रखते हैं? आपके पास इतना पैसा है? 3 लाख रुपए अगर आप एक घर के लिए देंगे तो 6000 बिलियन रुपए बनते हैं, मिलियन नहीं बिलियन रुपए बनते हैं। क्या आपके पास इतने अब पैसे हैं? नहीं है। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलकर क्यों सिंधियों को, क्यों सैलाब ज़दगान को आप मुतासिर मजीद कर रहे हैं? आप कितने घर बनाएंगे? 3 महीने के बाद आप बंद इस असेंबली का ताला खोलने के बाद अभी आप आए हैं और हमें अभी तक आपने एक घर का नहीं बताया कि हमने कितने घर बनाए हैं। 20 लाख घर आप कब बनाएंगे, कितना बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? वो बात तो अपनी जगह पर है, मगर मुझे बताएं, आपने 10,000 घर बनाए, आपने 20,000 घर बनाए, आपने 30,000 घर बनाए, आपने 1 लाख बना लिया, 20 लाख में से कितने बनाए? अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया। आप यही कुछ सुनाते जाएंगे, यही हम सुनते जाएंगे कि हम इतने लाख बनाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप बनाते बनाते यहां से चले जाएंगे और वो बेसरो सामान थे बेचारे, बेसरो सामान रहेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों ने सैलाब ज़दगान के साथ भरपूर ताउन किया है, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, उन्होंने बाकी एनजीओज के प्लेटफार्म से भरपूर ताउन करके उनको सहारा देने की कोशिश की है। जितना सहारा देने की कोशिश चाहिए थी वो की गई है। ट्यूबवेल लगाए गए हैं, फिल्टर लगाए गए हैं और तालाब बनाए गए पानी के लिए, ताकि उनके पास साफ पानी मौजूद हो, वो पीने का पानी मौजूद हो, उनके लिए खुराक हो। और खेमा बस्तियां कायम की गई और हजारों खेमे बनाए गए और उनके लिए खुराक का इंतजाम किया। आज अभी जाएं, अभी मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, टंडो अल्लाह यार में आप कहते हैं कि अभी तक सारी चीजें ठीक है, वो तो बेचारा अभी भी रोडों पर है, अभी भी वो बेसरो सामानी के आलम में है, उनके सरों पर कोई छत नहीं है, बेसरो सामानी के आलम में रोड पर अभी भी माए बहने बच्चे बेचारे बिलक रहे हैं, वहां मौजूद है। और अभी 2 दिन पहले टंडो अल्लाह यार में एक ट्रक हादसे में एक माँ और बच्चे को कुचल दिया गया। आपने कहा हमने
تو सब ठीक कर दिया है, हमने तो उनको सारा सहूलियत दे दी है, मगर वो माँ और बच्चा क्यों हलाक हो गए, वो बच्चा क्यों शहीद हो गया, मुझे ये बताया जाए। और ये बात का पैगाम, इस बात को ज़हन में रखिएगा, वो जो रोड में शहीद हुए हैं वो माँ बच्चे, वो सिंध के हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है, और वो ऐसा तमाचा है जो तारीखी तमाचा है कि रोड पर बिलखने वाली माए बहने, वो सिंधी बेचारे, वो क्यों उस तरह रोड पर मौजूद है, हुकूमत ने उनके लिए क्यों घर नहीं दिया। वो हुकूमत जिसने ये कहा कि रोटी कपड़ा मकान, ना उनके पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, सिवाय सहारों के, सिवाय झूठे बातों के, सिवाय ये वो दाएं बाएं करने के, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर नहीं आता। हम ये देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे का कोई प्लान नहीं है, आगे का क्या आप देंगे, क्या करेंगे आप, अभी तक आपने कोई खास प्लान, आप आते और बताते कि हमने आगे इतने सारा कुछ हमने प्लान बना दिया है और हमने उनमें से इतनों पर अमल भी किया है। और मुझे तो इतनी बड़ी बहुत अफसोस की बात है, बहुत परेशानी की बात है मेरे लिए कि इधर जब हुकूमती बेंचों से कोई एक जरा बराबर, एक तिनका बराबर कोई काम दिखाया जाता है तो सारे टैक्स बजा रहे थे, खुश हो रहे होते। भाई ये टैक्स बजाने के दिन नहीं है, ये कर्ब का दिन है, परेशानी का दिन है, खुशी का के दिन नहीं है। हमारी सिंधी अवाम वहां पर परेशान है, वो परेशानियों में मौजूद है। आप खुशी से टैक्स बजा रहे हैं, क्या आपने उनके सारे मामलात को ठीक कर दिया, क्या आपने उनके सारी चीजों को ठीक कर दिया, क्या वो अभी खुशहाल हो गए, क्या उनकी स्कूलें बहाल हो गई, क्या उनके वो सेहत के इदारे बहाल हो गए? नहीं, वो अभी भी बेचारे दवाइयों के लिए परेशान है, अभी भी वो तालीम के लिए परेशान है। सीएम साहब ने कहा कि 20,000 स्कूल मुतासिर है, तो भाई उन सिर्फ आपने ये तो कह दिया हमें कि स्कूल मुतासिर है, मगर स्कूलों में से कितनों को आपने तामीर किया, कितनों को बहाल कर दिया, कहां तक आपने बहाल कर दिया? क्या अभी तक पानी निकल चुका है? पानी तो वहां मौजूद है, पानी भी मौजूद है, लोग भी मौजूद है, फिर आज फिर असेंबली क्यों लगाने की क्या जरूरत है? अगर परेशानी ज्यादा है और अभी तक है और मौजूद है तो फिर हमें फिर आज भी असेंबली में नहीं होना चाहिए था, फिर आज भी हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, फिर आज भी हम वहां बैठे रहते। क्या आपके कहकर आप कह रहे हैं जी आपका टाइम पूरा हो गया है? तो टाइम मेरे ख्याल 15 मिनट में 10 मिनट हो गया अभी तक। नहीं 10 और अपोजिशन लीडर है, 18 मिनट हो गए, मैं नोट कर रहा हूँ, वक्त दिया, अभी और भी मेंबर बोलेंगे, मैंने तो अभी तक हमने फिक्स किया था 15 मिनट।